So today we are going to finish with this unit 2. So हम क्या करते हैं, पहले रिवीजन ले लेते हैं सब और फिर लास्ट में जो हमारा एक या दो ही टॉपिक बचे उसके साथ कंटिन्यू करके फिर कर देते हैं, ठीक है। ओके। तो यूनिट 2 में हमने क्या देखा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर डेटा, हाउ टू मूव योर डेटा, राइट। So it is very necessary to know about your data in data mining, and we have studied various aspects of data in this unit, right। जैसे ये जो आप यहाँ पे डायग्राम अगर पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपको ये पूरा यूनिट समझ में आ जाएगा, मतलब पूरे यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए वो सारे इसमें हैं। ओके। सो इसमें से कुछ टॉपिक के और भी सब टॉपिक्स हैं, लेकिन ठीक है, मतलब ये डायग्राम ये पूरा यूनिट का एक ओवरव्यू दे देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो एट्रीब्यूट इज अ डेटा फील्ड दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ सम डेटा ऑब्जेक्ट। So data object is some entity like we have seen student is a data object which is represented by attributes like student ID, roll number, class, phone number, address, etc. Right? So these all student ID, name, these all are attributes of the data object student. Okay. Then we have seen various types of attributes. So in that, nominal, binary, ordinal and numeric, these four data types we have seen. Okay. याद है आपको what is nominal? Can you give one example of nominal attribute? Like when hair color. Hair color, right? और क्या होते हैं nominal attributes? These are known as categorical attributes. ये कुछ categories होते हैं, इनको एक specific कुछ भी order नहीं होती है. So these are states without any intrinsic or any specific ordering. Like for example hair color, black, brown, blonde, grey, etc. तो अगर आप ये कलर्स देखोगे तो इनको कुछ भी ऑर्डर नहीं है, राइट। किसी भी ऑर्डर में आप लिखोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल बी वन एंड द सेम। तो ये जो नॉमिनल एट्रीब्यूट होते हैं ये कैटेगरीज होते हैं, लेकिन इनको कुछ ऑर्डर नहीं होता। ओके। वन मोर एग्जांपल, मैरिटल स्टेटस जैसे सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, विडो, दीज आर द values for marital status, right? Such types of attributes are called as nominal attributes. Okay, they are categories or labels and don't have any ordering. Okay, then just a second. Next we have binary attribute. So meaning is in its name only. Binary means is having two values, only two values, like gender, male, female, any medical test, positive, negative, smoker attribute like smoker or no smoker, 0, 1. So such type of data is called as binary attribute. Okay. So you can say binary attribute is a type of nominal attribute, but having only two values. Okay. So here it is written. They are also considered as nominal attributes, but the only difference or only thing here you have to remember is they are having only two possible values. That's why the name is binary. Then we have seen ordinal attribute. So ordinal attributes are also labels. They are also some categories. But when we say ordinal, ordinal means they are having some specific order, like small, medium, large. So here if you see the values, they have some order, like small is less than medium, medium is less than large. They have some specific order. Or rating is the best example of ordinal attribute, right?
जैसे very dissatisfied, somewhat dissatisfied, neutral, satisfied, very satisfied. So there is some order. So when data is represented in the form of labels, and along with label they have some order, such attributes are called as ordinal attributes. Okay, and when any order is not present, such attributes are called as nominal attributes. Okay, and last one we have seen is numeric attribute. So as its name suggests, numeric attribute will always have some numeric value, some number value. Okay, so it can be integer, it can be value in real number like float value, but it is always numeric value. We can measure it. Okay, so these values are measurable. They are quantities, measurable quantities using integer or real value. But in numeric attributes, again we have subcategories: interval scale and ratio scale. Okay, so what is interval scale? Interval scaled attributes are measured on the scale of equal size units. And one important point to remember about interval scale is they do not have true 0 point. Okay, let's say for example temperature. So when we say temperature is 0 degree, that does not mean there is an absence of temperature. Okay, meaning of 0 degree is very less temperature. Okay, even if you say -1, -2 degree, that means very low temperature, but it does not mean there is no temperature, right? So these interval scale attributes does not have any 0 point. Okay, after that we have seen ratio scaled attributes. Okay, so ratio scaled attributes have 0 point. Okay, the only difference between interval scaled and ratio scaled attribute is interval scale does not have 0 point, whereas ratio scale have 0 point. Okay, they are ordered like years of experience, number of words, number of occurrences, or height, weight, latitude, longitude. These all are examples of ratio scaled attributes. Okay, so how can we justify that they have 0 point? Because when we say years of experience, it's 0. That means no experience, right? That means absence of experience. When we say number of words in some sentence are 0, that means no words are there. If we say number of occurrences of some letter in some string is 0, that means there is absence of that letter, right? So this is the meaning of 0 in ratio scale attribute. That is why we call, or we say that they have inherent 0 point. Okay, so these are types of attributes we have seen. Now again, in broad terms, these attributes are categorized into discrete attributes and continuous attributes. Okay, so discrete attribute has finite or countably infinite set of values. Okay, each value represents some category, state, or code. So discrete values are nothing but the labels. So our nominal, whatever nominal attributes we have seen, they comes under discrete. Whatever ordinal attributes we have seen, they come under discrete attribute. Okay, but numeric attributes cannot come under discrete attribute, because when we say numeric values, those numeric values are infinite in nature. So infinite cannot come under discrete. Got it? और इफ अगर न्यूमेरिक वैल्यूज है भी डिस्क्रीट में, तो उनका सेट कैसा होना चाहिए? फाइनाइट, जैसे इंटीजर्स फ्रॉम 1 to till 10. Okay, and this 1 will have some significance, 2 will have some significance, just like that numbers value can have. But you cannot say height is a discrete attribute, right? Because height can have any value in any range, so infinite values can be there. That is why
it cannot come under discrete. Okay, but height can obviously come under continuous. Okay, so continuous have infinite number of possible values like temperature, height, weight, longitude, latitude, all these are continuous attributes. Okay, stock prices, cricket score, these all are continuous attributes. Okay, so the values which are infinite in number are expressed in terms of real numbers and called as continuous attribute. Okay, so these all are types of attributes we have seen. So whenever you will see any type of data, you should be able to categorize that particular data in any of these type of attributes. Getting my point? अभी आपको डेटा के सारे टाइप्स पता चल गए, इतने ही टाइप्स है, आप कैसा भी डेटा देखो उनमें से उसमें आपको इसके अलावा कोई भी टाइप नहीं दिखेगा. तो अगर कोई भी डेटा है आपके पास तो उसको आपको कोई ना कोई कैटेगरी में कैटेगराइज करते आना चाहिए. आ रहा है समझ में सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जस्ट वेट, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप के हैं. ठीक है, just wait for 2 minutes. I have one file, I just need to check that file. ओके, ब्लड ग्रुप, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, ये कौन से टाइप का एट्रीब्यूट है? Nominal. नॉमिनल, राइट. नॉमिनल और उसके साथ कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट? Descript, ma'am. डिस्क्रीट, राइट, वेरी गुड. ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल, नेशनैलिटी, जैसे इंडियन, अमेरिकन, कैनेडियन, चाइनीज, ये भी मैम नॉमिनल है. ये भी कौन सा है? नॉमिनल और डिस्क्रीट, राइट. Yes, ma'am. नेक्स्ट लेट्स से एजुकेशनल लेवल, जैसे हाई स्कूल, देन जूनियर कॉलेज, देन बैचलर एंड पोस्ट ग्रेजुएट, और बैचलर के बाद मास्टर्स. ये क्या है? Ordinal, ma'am. दिस इज ऑर्डिनल. ऑर्डिनल एंड कौन सी? नॉमिनल में भी मैम आएगा. ऑर्डिनल एंड नॉमिनल नहीं, ऑर्डिनल एंड डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, वो बताना है आपको. कोई भी वैल्यू मैम. नॉमिनल और ऑर्डिनल एक साथ नहीं हो सकता है. ठीक है, Yes, नॉमिनल, ma'am. ऑर्डिनल, बाइनरी और न्यूमेरिक, ये चार अलग अलग टाइप है, लेकिन फिर से उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, राइट. तो आप कह सकते हो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के वो टाइप्स है. और
तो अगर एजुकेशनल लेवल ले ले हम तो ये ऑर्डिनल टाइप का एट्रीब्यूट है, बिकॉज सम ऑर्डर इज प्रेजेंट, जैसे हाई स्कूल के बाद ही जूनियर कॉलेज आता है, उसके बाद ही बैचलर, उसके बाद मास्टर्स, ठीक है, तो ऑर्डर प्रेजेंट है इसलिए कंटिन्यूअस मैम, हाँ, लेकिन ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस मैम। नाउ सी कंटिन्यूअस का डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट में नहीं क्या है मैम। होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होते हैं और वो मोस्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स में, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज दिख रहे हैं क्या? नो मैम। नहीं। और रियल नंबर्स दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे आपको कुछ रेंज दिया नहीं हुआ मैम। है क्या? नहीं। तो ये क्या हुआ, ऑर्डिनल एंड डिस्क्रीट। राइट। तो 99.9% टाइम आपको जब आपका डेटा टाइप नॉमिनल या एंड ऑर्डिनल होगा डिस्क्रीट। तो ये डिस्क्रीट ही होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉमिनल या ऑर्डिनल आपका डेटा है तो वो डिस्क्रीट ही होगा 99.9%। अभी और एक एग्जांपल आइटम स्टेटस का हमने देख लिया। हाइट क्या है? हाइट जैसे 150 175 कुछ भी हो सकता है हाइट की वैल्यू तो, लेकिन हाइट एज एन एट्रीब्यूट तो न्यूमेरिकल होगा मैम। न्यूमेरिकल होगा, राइट। हाइट क्या होगा? न्यूमेरिक और कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस, राइट। न्यूमेरिक एंड कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज इन रेंज। किसी का 150 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी का 150.2 हो सकता है, किसी का 175 हो सकता है, छोटे बच्चों का 45 50 हो सकता है, 50.5 हो सकता है। सो इट हैज रेंज। तो वो वैल्यूज अगर हम काउंट करें तो दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। सो हाइट इज numeric attribute and it is continuous attribute। आ गया अभी समझ में? कोई डाउट है एट्रीब्यूट टाइप्स में? नो मैम। ओके, ठीक। Then next we have seen statistical description of data. Okay, so this will show you how your data is spread, how to calculate middle value or central tendency. It is also called as central tendency. How your data is spread around your central tendency. This all description about data will be given using different techniques. Okay, so that we have seen after that. So first topic in that is measure of central tendency. Okay, so central tendency find out करने के अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे मीन, मीडियन, मोड एंड मिड रेंज। ओके, ये चार टाइप्स हमने या चार टेक्निक्स हमने देखे थे। मीन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मीन? एवरेज। एवरेज, राइट। इट इज अरिथमेटिक मीन और एवरेज। और ये एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय n। n मीन्स टोटल लाइक काउंट ऑफ नंबर्स। जैसे हमारे पास 12 नंबर्स है ये टोटल, हम उसका सम करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, जो भी नंबर आएगा दिस इज द अरिथमेटिक मीन। ओके, सो मीन इज वेरी सिंपल, इट इज एवरेज। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सीन एक डिसएडवांटेज हमने मीन का देखा था कि अगर आपके डेटा में आउटलायर है तो आपका मीन बहुत अलग आ जाता है, ठीक है। वैसे वो ओवरकम करने के लिए या अगर आपके डेटा में आउटलायर है तो आप सेंट्रल टेंडेंसी मीन से मत फाइंड आउट करें, मीन से ना फाइंड आउट करें, उससे अच्छा मीडियन और मोड से फाइंड आउट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन मीन्स for median you first need to sort the data. So median is central value or middle value in the sorted data. Okay,
So whenever you will go for finding median, first you have to sort the data, और sort करने के बाद आप उसका जो middle element होंगे, जो भी middle element होगा उस डेटा का, that is nothing but the median. लेकिन यहाँ पे एक इशू आ जाता है कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो आपको मिडल एलिमेंट 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, राइट? तो वो जो 2 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, उनका एवरेज हो जाता है आपका मीडियन। लेकिन आपके अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है तो जो भी आपका मिडल एलिमेंट है वो ये आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है? Then next we have seen mode. Okay, now mode is the technique which can be applied to discrete as well as continuous data और qualitative as well as quantitative data. मतलब आपके पास नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा है तो उसका आप मीन नहीं निकाल सकते, बट मोड निकाल सकते हो, ठीक है? बिकॉज मोड इज व्हाट? मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट, ठीक है? तो वो मेजरेबल क्वांटिटी है या नहीं है उसके साथ मोड का कुछ लेना देना नहीं होता। मोड क्या करता है? सिर्फ सिर्फ काउंटिंग बताता है। फ्रीक्वेंसीज काउंट करता है, कितनी बार आकर हुआ है पूरे डेटा सेट में, उनका काउंट करता है, और जो सबसे ज्यादा बार एग्जिस्ट हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ है डेटा सेट में, दैट इज नथिंग बट योर मोड। ओके, नाउ मोड के हमने मल्टीपल टाइप्स देखे थे। जैसे कुछ डेटा में अगर एक ही वैल्यू है जो ज्यादा बार एग्जिस्ट हुई है तो उस डेटा को कहते हैं हम यूनिमोडल डेटा सेट। कुछ कुछ डेटा में ऐसे भी होता है कि दो ऐसी वैल्यूज है जो सेम टाइम्स अकर हुई है तो उनको कहते हैं हम बाई मॉडल डेटा। सिमिलरली 3 वैल्यूज अगर सेम फ्रीक्वेंसी में आई है देन वी कॉल इट एज अ ट्राई मॉडल डेटा, और उससे ज़्यादा भी वैल्यूज है अगर सेम फ्रीक्वेंसी में आई है तो सच डेटा इज कॉल्ड एज मल्टी मॉडल डेटा। ओके, एंड वन मोर थिंग कि अगर आपके डेटा सेट में सारे ही वैल्यूज एक ही बार आए हैं, so if all data values occur only once then there is no mode। तो एक तो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए मोड निकालने के लिए, आपके डेटा में एक तो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो रिपीट हो रही हो, then only you can calculate the mode, otherwise you can say there is no mode exist in the data, ठीक है? तो यहाँ ठीक है पे मैम। एग्जाम्पल लिया था हमने, ये एग्जाम्पल था, इसमें 52 एंड 72 बार आए थे, तो ये है बाई मॉडल डेटा सेट बिकॉज हियर 52 एंड 70 occur most frequently, that is 2 times, but ऐसी दो वैल्यू है with same frequency, so this such data set is called as bimodal। okay, and then last central tendency का टेक्निक हमने देखा था, that is mid range। okay, mid range is very simple, just you have to find out maximum element in your data set, then minimum element in your data set, okay, add them and divide by 2, this will give you mid range of your data। okay, तो जैसे ये हमारा डेटा है, इसमें मिनिमम वैल्यू है 30, मैक्सिमम वैल्यू है 110, so 140 divided by 2 that is 70 is nothing but your mid range। okay, तो ये सारे टेक्निक्स है, ये सारे मेथड्स है डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए। मतलब आपके डेटा का सेंटर कहाँ पे लाई करता है, किस वैल्यू के अराउंड लाई करता है। ओके, then next we have seen dispersion of data। okay, how your data is spread, so in that we have seen range, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। ओके, तो आपके डेटा का डिस्पर्शन समझने के लिए, कैसे डेटा आपका स्प्रेड हो रहा है वो समझने के लिए ये सारे मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये सारे ही कैलकुलेशन है, ये सब स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका डेटा कैसे डिस्पर्स हो रहा है। तो रेंज इज सिंपलेस्ट वन। रेंज में क्या करते हैं हम? मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट। ओके, मिड रेंज के लिए हमने क्या किया था? डिवाइड बाय 2 किया था और ऐड किया था, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है आपको? मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट, दिस विल गिव यू रेंज। ओके, इतना सिंपल है रेंज।
उसके बाद हमने देखा था क्वांटाइल। ओके, तो क्वांटाइल क्या होते हैं? क्वांटाइल्स आर सेट ऑफ पॉइंट्स दैट डिवाइड योर डेटा सेट इनटू ग्रुप ऑफ इक्वल साइज। ओके, तो ये डायग्राम से हमने समझा था कि आपके पास जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको अगर आपको इक्वल साइज के ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो कितने ग्रुप का साइज कितना होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो जैसे आपको अगर 3 चाहिए ग्रुप का साइज, तो आप क्या करोगे, आपका जैसा भी डेटा है उसको डायरेक्टली 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करोगे, ठीक है। लेकिन वो 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करने के लिए आपको जितने पॉइंट्स लगेंगे, ऑल दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज क्वांटाइल्स, ठीक है। तो ये जो डेटा है इनको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हमें कितने क्वांटाइल्स लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो स्टैंडिंग लाइन देख रहे हो आप, दीज आर नथिंग बट द क्वांटाइल्स। Okay, so there are 9 values that split the data set, so we have 9 quantiles। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्वांटाइल ये टर्म यूज नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे हमें ग्रुप का साइज पता नहीं होता है, और यूजुअली हम हमारा डेटा एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में हम हमारा डेटा 4 इक्वल साइज के ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एंड ईच पॉइंट इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल। ओके, जैसे क्वांटाइल में हमारे ग्रुप की साइज फिक्स नहीं थी, वैसे यहाँ पे हमारे ग्रुप की साइज फिक्स है। कितने ग्रुप चाहिए हमें? यहाँ पे 4 ग्रुप, और 4 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स लगते हैं? 3 पॉइंट्स। So ये set of 3 point is called as quartile. Okay, so the 3 dividing points that split data into 4 equally sized groups are called as quartiles। Okay, तो यहाँ पे जितना भी आपका डेटा है उसमें से फर्स्ट 25% डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, सेकेंड 25% डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, देन थर्ड 25% डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड रिमेनिंग 25% आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसके पहले का सारा डेटा कंसिडर करोगे, इसके पहले का, तो वो होगा 50%, और इसके बाद होगा आपका 50%, ठीक है। तो हाफ डेटा आपका इधर होगा इस साइड में, ये Q2 के लेफ्ट में, और हाफ ऑफ द डेटा यू विल फाइंड ऑन द राइट ऑफ Q2। तो ये जो Q2 है इसको हम कहते हैं मीडियन, that is center of your data, which is dividing your data into two halves। ओके, तो Q2 को हम मीडियन भी कहते हैं। दिस इज अबाउट क्वार्टाइल। नेक्स्ट वी हैव सीन इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज समझने के लिए आपको उसके पहले क्वार्टाइल क्या होते पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वार्टाइल अभी हमने देखा, क्वार्टाइल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। क्वार्टाइल क्या होते हैं? Q1, Q2 एंड Q3। सेट ऑफ दिस 3 पॉइंट इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल। नाउ अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? Q3 माइनस Q1। ओके, तो Q3 माइनस Q1 से जो भी वैल्यू मिलती है आपको, दैट इज नथिंग बट द इंटर क्वार्टाइल रेंज। Okay, and then next we have seen percentile. This is again depend on quantile। Okay, quantile के ऊपर ही quartile भी डिपेंड था, और percentile भी क्वांटाइल का ही एक टाइप है। लेकिन इसमें परसेंटाइल में हम क्या करते हैं, जो भी आपका डेटा है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन वी कॉल देम एज परसेंटाइल। मतलब अगर आपको 20 परसेंटाइल ऑफ डेटा चाहिए तो 20 पॉइंट्स तक जो भी डेटा होगा वो होगा 20%। ठीक है, इक्वल साइज के ग्रुप में डिवाइड करना है, लेकिन क्वार्टाइल डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में, वैसे परसेंटाइल डिवाइड करता है 100 पार्ट्स में। ठीक है, तो परसेंटाइल में आपके पास होंगे 100 पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट मतलब 1%, 2 पॉइंट मतलब 2%, 3 पॉइंट तक का डेटा मतलब 3%, ऐसे 100 पॉइंट तक का डेटा मतलब 100%। ठीक है, मतलब अगर आपके डेटा में 100 पॉइंट्स है तो हर एक परसेंट में आपका एक पॉइंट आएगा। दिस इज कॉल्ड एज परसेंटाइल। ओके, देन वी हैव सीन 5 number summary plot which is depend again on quartile।
तो क्वार्टाइल में हमने देखे थे 3 पॉइंट्स Q1, Q2 एंड Q3। उसके साथ अगर आप आपके डेटा का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट लगा देते हैं तो वो बन जाता है 5 नंबर समरी। एंड उसके बाद देखा था हमने बॉक्स प्लॉट। ओके, तो बॉक्स प्लॉट भी क्वार्टाइल के ऊपर ही डिपेंड है, क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। देन उसके बाद हमने देखा था वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये सारे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन तक जितने भी है वो सारे क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ डेटा। ये सारे आपको दिखाते हैं कि आपका डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस निकालने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने देखा था। सबसे पहले तो मीन निकालना है, उसके बाद हर एक डेटा पॉइंट से आपको मीन सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 84 इज आवर मीन and we are subtracting every element, every number from mean. So 70 minus 84, 80 minus 84, like that. Whatever value you will get, उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर निकालने के बाद you will add all those values। ठीक है, and then divide by number of elements। तो ये जो आया, ये क्या आया, वेरिएंस विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ओके, और एक बार आपने वेरिएंस निकाल लिया तो उसके बाद अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे विजुअलाइजेशन, क्वांटाइल प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, उसमें हमने देखा था। तो क्वांटाइल प्लॉट के लिए भी हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा कि कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वांटाइल्स फाइंड आउट करने होते हैं। क्वांटाइल्स आर डिनोटेड यूजिंग Fi, और जो भी आपका डेटा पॉइंट है जैसे x1 f1, ये एज अ पेयर कंसिडर करके आप प्लॉट पे प्लॉट करोगे लाइक दिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज quantile plot. Okay, when we say QQ plot means quantile plot। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे क्वांटाइल प्लॉट में हमारे पास एक ही डेटा सेट है, राइट, और उसके हमने क्वांटाइल फाइंड आउट किए और डेटा प्लॉट किया। वैसे QQ प्लॉट में आपके पास 2 डेटा सेट्स होते हैं और 2 डेटा सेट के लिए आप क्वांटाइल प्लॉट प्लॉट करते हो और वहाँ पे आपको एक ही प्लॉट में कंपैरिजन पता चलता है। इसलिए क्योंकि प्लॉट हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए कि दो डेटा, मतलब दो डेटा सेट अगर आपको दिए हैं तो वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से या कितने सेम है एक दूसरे से, उसके लिए हमें क्यू प्लॉट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम शो करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। ठीक है, उसके लिए भी हमने एग्जांपल देखा था। तो एक्स एक्सिस पे हम रेंज डिस्प्ले करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर कोई क्लास के बच्चों का हाइट का डेटा है हमारे पास, तो 60 to 75 में कितने बच्चे हैं, देन 66 to 70 में कितने बच्चे हैं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वाई एक्सिस है इस पे हम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो बार होता है इनकी हाइट होती है फ्रीक्वेंसी। ओके, और इनकी विड्थ होती है रेंज। ये है 60 टू 65। ओके, यहाँ पे 65 था। दिस इज हिस्टोग्राम। एंड देन लास्ट वी हैव सीन स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट के लिए हम इसके पहले जो भी विजुअलाइजेशन के टाइप देखे थे उनमें हमने देखा था वो सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं यूनिवेरिएट डेटा। दे आर एबल टू रिप्रेजेंट यूनिवेरिएट डेटा, whereas scatter plots are used for bivariate data। bivariate means अगर आप ये डेटा देखोगे तो इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एज ऑफ चाइल्ड एंड हाइट, राइट। तो हम इन दोनों को इस प्लॉट में प्लॉट कर रहे हैं, एज ऑफ चाइल्ड एंड हाइट। इससे हमें क्या पता चलता है
कि ये जो दोनों वेरिएबल है ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, हाउ दे आर को रिलेटिंग विथ ईच अदर। तो अगर ये प्लॉट देखोगे तो हमें पता चलता है कि जैसे चाइल्ड का एज बढ़ता है वैसे हाइट भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। तो स्कैटर प्लॉट आपको दिखाता है कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। और वो जो कोरिलेशन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड नो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये जो है ये है पॉजिटिव। अगर आपकी एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उसके साथ दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे आपके प्लॉट की डायरेक्शन है इस टाइप में, तो उसको कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन। और आपके अगर दो वेरिएबल्स में कोई भी कोरिलेशन नहीं है तो आपको रैंडमली कहीं पे भी पॉइंट्स दिखेंगे, तो उसको कहते हैं हम नो कोरिलेशन। आई थिंक आई हैव दैट डायग्राम। So this first diagram shows positive correlation, second diagram shows negative correlation and this third diagram में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे कोई भी correlation नहीं है, randomly points are scattered, this is called as no correlation। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. Then we have seen सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन डेटा। ओके, तो हर एक टाइप के एट्रीब्यूट के लिए हमारे पास अलग अलग मेजर है सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी फाइंड आउट करने का। ओके, और वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं, जैसे आप ये डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स में देख सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मतलब ये जो डायगोनल है इसके ऊपर के और इसके नीचे के एलिमेंट्स आपको सेम दिखेंगे, जैसे 8.66 8.66 8.6 8.6, यहाँ पे 17.32 17.32। ठीक है, तो ये है हमारा, ये सेल कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, सो 1 2 विल बी इक्वल टू 2 1, ऐसे इसको कहते हैं हम सिमेट्री। ओके, तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है वो डिस्क्राइब करने के लिए, वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स। ओके, देन उसके बाद हमने देखा कि नॉमिनल एट्रीब्यूट में सिमिलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा अभी फास्ट जाती हूँ, नहीं तो हमारा वो वाला टॉपिक ही बच जाएगा। देन उसके बाद हमने देखा कि बाइनरी एट्रीब्यूट की सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिटेल में मैंने समझाया था, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता दो क्या नहीं समझ में आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा डिसिमिलैरिटी बिटवीन बाइनरी एट्रीब्यूट। इसके बाइनरी के पहले हमने देखा था नॉमिनल, राइट। देन हमने देखा बाइनरी, लेकिन बाइनरी में भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक जैसे बोथ स्टेट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, जैसे मेल फीमेल, इसमें दोनों भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन असिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे कोई टेस्ट है पॉजिटिव निगेटिव, उसमें पॉजिटिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, निगेटिव मतलब होता है एब्सेंट। इसलिए दोनों में भी ये जो सिमिलैरिटी मेजर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो बाइनरी में हमने सिमेट्रिक के लिए देखा, फिर असिमेट्रिक के लिए भी देखा। उसके बाद हमने न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स में देखा, अलग अलग मेथड्स देखे हमने, जैसे यूक्लिडियन, मैनहट्टन एंड मिन्काउस्की। ये तीन टाइप्स हमने न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स के लिए देखे थे। ठीक है, सो एवरी मेट्रिक हैज सम फार्मूला, तो फार्मूला यूज करके हम वो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिक। और लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का, कि प्रॉक्सिमिटी मेजर फॉर ऑर्डिनल एट्रीब्यूट। ओके, तो अभी ऑर्डिनल एट्रीब्यूट तो आपको क्लियर है कि कैटेगरिकल डेटा होता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अगर इस टाइप का डेटा है तो इसमें हम सिमिलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है,
So again, these are the steps. So first step is assign ranks to each attribute value. जैसे आपके पास फेयर, गुड और एक्सेलेंट है, तो इसको हम कुछ ना कुछ रैंक असाइन करेंगे. जैसे फेयर के लिए 1, गुड के लिए 2 और एक्सेलेंट के लिए 3. ऐसे कुछ रैंक न्यूमेरिक नंबर देना है, क्योंकि इसके बाद हमें जो सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, इसलिए हमें इनको नंबर में नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. दैट इज वाई वी विल असाइन सम रैंक. तो यहाँ पे हमने फेयर को 1 रैंक दिया, गुड को 2 रैंक दिया, एक्सेलेंट को 3 रैंक दिया. Now we have to normalize these ranks between range 0.0 to 1.0. तो ये जो रेंज है इनको हमें नॉर्मलाइज करना है. तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं? RIF माइनस 1 डिवाइडेड बाय MIF माइनस 1. ठीक है, तो इसमें RIF और MF क्या है? सी, RIF इज रैंक. जैसे फेयर का 1 है, गुड का 2 है, एक्सेलेंट का 3 है, तो ये हुआ रैंक ऑफ ith ऑब्जेक्ट फॉर एट्रीब्यूट f. और mf क्या है? टोटल नंबर ऑफ रैंक्स. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रैंक्स कितने हैं? 3. और टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज 3. तो यहाँ पे अगर आपको फेयर को नॉर्मलाइज करना है तो कैसे आएगा? 1 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाय divided 3 3 माइनस minus 1. 1. इसकी वैल्यू आएगी 0, बिकॉज 1 माइनस 1 ऊपर ही न्यूमरेटर ही आपका 0 आ रहा है. उसके बाद अगर गुड का आपको निकालना है तो क्या आएगा? 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1. तो ये आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2. मतलब फेयर का रैंक आया, सॉरी, नॉर्मलाइजेशन के बाद वैल्यू आया 0, गुड का आया 0.5 और एक्सेलेंट का आएगा 3 माइनस 1 1. डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, दैट इज 1. ठीक है, तो ये जो 1, 2, 3 वैल्यूज थे इनको हमने 0.0 से लेकर 1.0 के रेंज में कन्वर्ट किया. तो ये अगर आप रेंज देखोगे तो ये बिटवीन 0 to 1 है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन. ओके, और जब आपको ये वैल्यूज आ गए उसके बाद क्या करना है? कोई भी डिस्टेंस मेजर, जैसे अभी ये जो वैल्यू आया आपके पास, ये किस टाइप के वैल्यूज है? न्यूमेरिक वैल्यूज मिल गए आपको, राइट? यस मैम. हाँ, तो अभी ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज मिल गए, तो न्यूमेरिक वैल्यूज में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए हमने 3 मेथड्स देखे थे, राइट? यूक्लिडियन, मैनहट्टन और मिनकाउस्की. तो इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके आप इनका सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपके पास ऑर्डिनल एट्रीब्यूट होगा तो सबसे पहले आपको ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स को रैंक करना है और उसके बाद उनका नॉर्मलाइजेशन करना है. नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको कंटिन्यूअस वैल्यूज मिलेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज मिलेंगे, और फिर न्यूमेरिक का कोई भी मेट्रिक यूज करके आप सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ वी मेजर सिमिलैरिटी ऑफ ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, दैट इज द थर्ड स्टेप. आई थिंक यहाँ पे दिया है मैंने. नॉर्मलाइज किया, सेकेंड स्टेप. एंड थर्ड में क्या किया हमने? यहाँ पे मैनहट्टन डिस्टेंस कंप्यूट करके डिसिमिलैरिटी बिटवीन ईच पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट किया हमने? डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स. ओके, तो ये हुआ डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स. मैनहट्टन में क्या करते हैं? हम डायरेक्टली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं और उनका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं. ठीक है, मतलब आपको एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कितनी डिसिमिलर है ये फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली उस वैल्यू को, मतलब उन दोनों वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन कर दो और उनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दो, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट द डिसिमिलैरिटी. ठीक है, तो ऐसा हमने उसका डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स बना लिया. जैसे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू मैं आपको कंप्यूट करके दिखाती हूँ. ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ 1 and
2। तो डिस्टेंस ऑफ 1 एंड 2 क्या आएगा मैनहट्टन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग? यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है 1.0 और सेकेंड वैल्यू क्या है 0, राइट। ये हमारा डेटा है एक्सेलेंट, फेयर, गुड एंड एक्सेलेंट। तो इसको हमने क्या किया, कितने कैटेगरीज है हमारे पास? 3 कैटेगरीज। तो फेयर को हमने 1 किया, गुड 2 और एक्सेलेंट 3। ठीक है, तो ये हमारा डेटा कैसे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रैंक। इसमें यहाँ पे और एक कॉलम बना देती हूँ रैंक। तो एक्सेलेंट का रैंक क्या है 3, देन फेयर का 1, गुड का 2 और अगेन 3। ठीक है, दिस इज अवर डेटा। अब यहाँ हमें क्या करना है, इनका डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स है इसलिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 और 4 कॉलम्स 1 2 3 एंड 4, राइट। तो हमें पता है कि 1 और 1 का डिसिमिलैरिटी कितना होता है 0 बिकॉज दे आर सिमिलर। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 0। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है 1, 2, राइट। तो 1 और 2 में डिसिमिलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड रैंक है 1 का, नॉर्मलाइज फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका नॉर्मलाइज रैंक है 1, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसका नॉर्मलाइज रैंक है 0, थर्ड का है 0.5, फोर्थ का है 1, राइट। बिकॉज फर्स्ट और फोर्थ ये एक्सेलेंट है, ये गुड है और ये फेयर है। अभी हमें 1 और 2 के बीच में डिसिमिलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो डिसिमिलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूक्लिडियन, मैनहट्टन या मीन काउची, कोई भी डिस्टेंस मेट्रिक यूज करके। तो यहाँ पे हमने किया मैनहट्टन जो कि सबसे सिंपल है। उसमें क्या करते हैं हम 1 और 2 का अगर आपको डिसिमिलैरिटी फाइंड आउट करना है तो 1 की वैल्यू लो, उससे 2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो, मतलब अगर निगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव कर दो। तो 1 माइनस 0 क्या हुआ 1। तो जो डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स है इसमें यहाँ पे क्या आया 1। ओके, अभी ये क्या है 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 का कैसे करेंगे, अगेन वील गो टू दिस टेबल, राइट। 1 एंड 3 इनका फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा 1.0 माइनस 0.5 और इनके एब्सोल्यूट, इसकी वैल्यू आती है 0.5। तो डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स में जाके देखोगे तो यहाँ पे क्या है 0.5। ओके, तो ऐसे ही हम सारे वैल्यूज कैलकुलेट करके, आपको कितने वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, बस 1 2 3 4 5 6 सेम वैल्यूज इसके नीचे हम कॉपी कर देंगे तो आपका डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सब? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. and now last similarity metric that is remaining is cosine similarity। ये कोसाइन सिमिलैरिटी क्या करता है, कोसाइन एंगल मेजर करता है कोई भी दो वेक्टर्स का। वेक्टर्स मतलब जो भी कोई दो डेटा पॉइंट्स है आपके पास, तो उनका कोसाइन एंगल ये मेजर करता है टू फाइंड आउट सिमिलैरिटी। ठीक है, तो उसका ये फिक्स फॉर्मूला है, सिमिलैरिटी ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डिवाइडेड बाय, ये जो है इसको कहते हैं यूक्लिडियन नॉर्म, एक्स और वाई का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर यूक्लिडियन नॉर्म। ठीक है, तो ये यूक्लिडियन नॉर्म कैसे निकालते हैं, अगर आपको एक्स का यूक्लिडियन नॉर्म निकालना है तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू जितने भी आपके x में वैल्यूज है उन सब का स्क्वायर करके ऐड कर लो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इसको कहते हैं हम यूक्लिडियन नॉर्म। ठीक है, तो ऐसे ही एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि लेट से ये एक वेक्टर है आपका x और y दूसरा वेक्टर है। ओके, तो सिर्फ हम टर्मिनोलॉजी अलग यूज कर रहे हैं, वेक्टर, वेक्टर इज नथिंग बट योर डेटा। ठीक है, तो आपके पास x है और y है, इनमें आपको डिसिमिलैरिटी सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपको दो चीजें लगती है, एक तो x डॉट वाई
तो x डॉट y कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 3, 0 इंटू 0, 3 ऐसे पेयर लेके इनका मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर उनका एडिशन करना है। ठीक है, 5 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 ऐसे करना है। ऐसे अगर आप करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25। ठीक है, फिर x और y के आपको यूक्लिडियन नॉर्म्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ऐसे करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही y के लिए 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इनका एडिशन, उनका स्क्वायर रूट, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज यूक्लिडियन नॉर्म फॉर y। ओके, और सिर्फ ये वैल्यूज आपको फॉर्मूला में पुट अप करनी है, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट द कोसाइन सिमिलैरिटी। ओके, तो यहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी क्या आया है, 0.94, मतलब x इज वेरी सिमिलर टू y, बिकॉज ये वैल्यू नियर अबाउट 1 आई है। और अगर ये वैल्यू आपकी आती है 0.01, तो हम क्या कहते हैं, x इज वेरी डिसिमिलर या फिर इट इज नॉट सिमिलर टू y। अगर 0.0 आती है, मतलब जीरो के पास आती है, जीरो के साइड में ज्यादा है, तो उसको कहते हैं हम x इज वेरी डिसिमिलर या x इज नॉट सिमिलर टू y। अगर 1 के साइड पे आती है, 1 के नियर आती है, तो उसको कहते हैं हम x इज सिमिलर टू y। ओके, so with this we have finished with this second unit. okay, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड किए थे। ठीक है, इसमें नहीं आए, वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो आप देख लेना। ये जो पीपीटी है वो मैं आपके क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर ही रही हूँ, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम रुकते हैं। कोई डाउट नहीं है ना आपको? नो मैम। ठीक है, I'm attending. हाँ ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। मैम अटेंडेंस। हाँ ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। थैंक यू। थैंक यू मैम। लीव करें मैम। यस यस, यू कैन लीव।